Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, working as Assistant Professor of Special Education at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. I have been serving at this university since 2014, and previously I have served at University of Management and Technology from 2008 to 2014. And I have done my PhD degree in special education in 2012 from University of the Punjab, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to HIC. This course belongs to Masters in Special Education, and for those students who belongs to area of hearing impairment. The course code is SPED 4133. This is the course of 3 credit hours, and the title of this lesson is Nature of Mathematics. During this lecture, we are going to discuss different perspectives of mathematics in order to understand the nature of mathematics for those children who are with hearing impairment. While discussing nature of mathematics, we will discuss further 6 points. दैट मीन्स के नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो 6 एरियाज को कवर कर रही है. फर्स्ट वन इज़ अ साइंस ऑफ डिस्कवरी. दैट मीन्स मैथमेटिक्स हैज़ अ नेचर दैट वी हैव टू डेवलप अ सेंस ऑफ डिस्कवरी, अ स्किल ऑफ डिस्कवरी अमंग द स्टूडेंट्स. अनदर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एज एन इंटेलेक्चुअल गेम. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैथ्स जो है वो एक इंटेलेक्चुअल गेम के तौर पर एक्ट कर रहा होता है ड्यूरिंग क्लासरूम, और हमने ड्यूरिंग क्लासरूम किस तरह से बच्चों के अंदर इसको जब पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें इसको एज एन इंटेलेक्चुअल गेम इंट्रोड्यूस करवाना है. थर्ड पॉइंट इज द आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन. दैट मीन्स के दिस इज ऑल्सो अ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स दैट बीइंग अ टीचर वी हैव टू इनकलकेट द स्किल ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स अमंग द स्टूडेंट्स. अगर हम मैथ्स की क्लास में एक बच्चा जो है वो अगर कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए की स्किल्स अगर उसको नहीं आ रही तो दैट मीन्स कि वो मैथमेटिक्स क्लासरूम जो है वो इतना सक्सेसफुल क्लासरूम नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज मैथमेटिक्स एज अ टूल सब्जेक्ट. इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैथ्स जो है वो एक सेपरेट एंटिटी और एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेसेस. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नेचर जो है वो मैथ्स की उसको एक लॉजिकल प्रोसेसेस के अकॉर्डिंगली हम उसको लेकर चलते हैं, और एक लॉजिकल सेट ऑफ लॉजिकल प्रोसेसेस होता है. लास्ट वन इज एन इंट्यूटिव मेथड. इसमें हम इंट्यूशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैथमेटिक्स क्लासरूम के अंदर हम बच्चों में ये वाली स्किल जो है इसको डेवलप कर सकते हैं, द यूज ऑफ इंट्यूशन इन द मैथ्स क्लासरूम. वन बाय वन अब हम इनमें से सारे पॉइंट्स करेंगे. The first one is a science of discovery. Mathematics is the discovery of relationships and the expression of those relationships in symbolic forms, like in words, in numbers, in letters, by diagrams or by graphs. That means कि maths जो है वो basically एक discovery of relationship है, and when we are able to discover the relationships, mathematical relationships, then we should be able to express those relationships in different forms. Like words में भी हम उसको कर सकते हैं, numbers में उसको express किया जा सकता है, like in the form of equations, in the form of formulas, in the form of letters, diagrams, graphs के through हम mathematical relationships जिनको हमने discover करवाया होता है क्लास में, उनको इस तरीके से explain किया जा सकता है, represent किया जा सकता है, उसको एक symbolic form में represent करना ज़रूरी होता है. According to A.N. Whitehead, every child should experience the joy of discovery. This is about the classroom, that if being a mathematics class teacher,
and you are teaching in the classroom, and your child should experience the joy of discovery in the classroom. Initially, a child's discoveries may be observational, but later, when its power of abstraction is adequately developed, it will be able to appreciate the certitude of the mathematical conclusions that it has drawn. This will give it the joy of discovering mathematical truths and concepts. Mathematics gives an early opportunity to make independent discoveries. Like एक common सी misconception शायद हमारे जहन में discovery के नाम से ये आती है कि it's about physical sciences, but it is same true for the mathematics, because discovering the relationships in the mathematics classroom is equally important. शुरू में बच्चे जब डिस्कवर कर रहे होते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और मैथमेटिकल ट्रूथ्स को डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ मोर लाइक अ जॉय, और उसको वो एंजॉय भी कर रहे होते हैं, प्लस वो उनके लिए एक ऑब्जर्वेशनल ट्रुथ के तौर पर वो सामने होता है. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बच्चों के मेच्योर होते जाते हैं, देन दे कम टू नो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो हैं मैथ्स के, उनके साथ भी वो रिलेट करना स्टार्ट करते हैं. The children must not only have opportunities for making their own discoveries of mathematical ideas, but they must also have the practice necessary to achieve accuracy in their calculations. So maths के अंदर ये नहीं कि just for the fun आप बच्चों को discoveries करवा रहे हैं और उनके, बल्कि वो सिर्फ अपने ideas को discover नहीं कर रहे होते, but जो उनके mathematical calculations को accuracy की तरफ लेकर जाने के लिए जो necessary practice होती है, उसको भी ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. टुडे इट इज डिस्कवरी टेक्निक्स विच आर मेकिंग स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस. दे आर बीइंग अप्लाइड इन टू फील्ड्स, in pure number relationships and in everyday problems involving such things as money, weights and measures. So discoveries जो हैं वो सिर्फ क्लासरूम की इसमें नहीं होता कि आप टेक्स्ट बुक के अंदर से ही उसको डिस्कवर करवा रहे होते हैं चीज़ें, बट इट शुड ऑल्सो रिलेट विद द डेली लाइफ स्किल्स. एंड डेली लाइफ के अंदर मैथमेटिक्स का जो यूज़ है, लाइक मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है, उसकी बहुत सी फॉर्म्स हर तरह से उसको बच्चे को सिखाना होता है. और इसी तरह से वेट्स एंड मेजर्स और बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि अकॉर्डिंग टू द ग्रेड लेवल बच्चे के जो नीड्स के मुताबिक उसको सिखाने होते हैं, उसमें उनकी डिस्कवरीज जो हैं उनको करवाना ज़रूर है. नेक्स्ट, द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एज एन इंटेलेक्चुअल गेम. यस, मैथमेटिक्स एज एन इंटेलेक्चुअल गेम. जनरली हम कहते हैं जी कि मैथमेटिक्स में जो बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और द पीपल दे आर डूइंग वेल इन मैथमेटिक्स, तो एक जनरल सी कॉन्सेप्शन ये होती है कि दे आर वेरी गुड, दे हैव वेरी गुड इंटेलेक्ट एक्चुअली. सो मैथमेटिक्स कैन बी ट्रीटेड एज एन इंटेलेक्चुअल गेम विद इट्स ओन रूल्स एंड विदाउट एनी रिलेशन टू एक्सटर्नल क्राइटेरिया. From this viewpoint, mathematics is mainly a matter of puzzles, paradoxes, and problem solving, a sort of healthy mental exercises. So it involves in the classroom healthy mental exercises of the students. हमने as a teacher, maths teacher, we have to present different puzzles, different activities which involve problem solving skills. और उसमें हम students को इस तरीके से involve करना चाहिए हमें कि बच्चे जो हैं वो उनकी मेंटल एक्सरसाइज हो रही हो साथ साथ, और वो मेंटली कंप्यूट करके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, उन पजल्स को सॉल्व कर रहे हो. तो इस तरह से जो मैथ्स है उसकी एक नेचर ये भी है कि दैट इज एन इंटेलेक्चुअल गेम. नेक्स्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स. द आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स मीन्स दैट हमें बच्चों के अंदर इस तरह की स्किल्स को डेवलप करना है कि वो डिफरेंट जो भी उनके पास अवेलेबल डाटा और अवेलेबल रूल्स, डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करते हुए दे शुड बी एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्कूल इज टू फेमिलियराइज चिल्ड्रन with a mode of thought which helps them in drawing right conclusions and inferences. According to J.W.A. Young, a subject suitable for this purpose should have 3 characteristics: that its conclusions are certain,
At first, at least, it is essential that the learner should know whether or not he has drawn the correct conclusions. That means कि first characteristic ये है of drawing conclusions कि students जो हैं उनको इस चीज़ की confirmation होनी चाहिए. They should be sure enough कि वो जो चीज़ें जो वो conclusion draw कर रहे हैं वो एक correct conclusion है. They should be confident upon their conclusion. That it permits the learner to begin with simple and very easy conclusions to pass in well graded sequence to very difficult ones as the earlier ones are mastered. Like इसमें भी again उसी तरीके से एक hierarchy है कि conclusions जब हम drawing conclusions की skill बच्चे के अंदर develop कर रहे होते हैं तो we should start from the simple and very easy conclusions और उसके बाद with the passage of time हम बच्चे को experience करवाते हैं कि how to deal with the difficult ones. और डेफिनेटली वो डिफ़िकल्ट की तरफ हम उसको तब लेकर जाएंगे जब उसने जो अर्लियर उसकी जो वर्जन है या उसके अर्लियर कंक्लूजन्स हैं उनको वो एग्जैक्टली मास्टर कर चुका होता है. Third characteristic is that the type of conclusions exemplified in the introductory subject be found in the other subjects also and in human interactions in general. That means कि जब हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं the art of drawing conclusions तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए बल्कि उस सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जब वो बात हो रही होती है या उसी कॉन्टेक्स्ट में जब वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ हो रही होती है तो वो बच्चा जो है उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो उससे मिलती जुलती सिचुएशंस के अंदर भी कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सके. उससे रिलेटेड जब वो ह्यूमन इंटरेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है और जनरल डेली लाइफ के अंदर जब उन स्किल्स को यूज़ कर रहा होता है तो उस वक्त भी उस बच्चे दैट चाइल्ड शुड बी एबल टू ड्रॉ द कंक्लूजन. नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एज अ टूल सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स हैज़ इट्स इंटेग्रिटी, its beauty, its structure, and many other features relate to mathematics as an end in itself. However, many conceive mathematics as a very useful means to other ends, a powerful and incisive tool of wide applicability. According to Howard F. Farr, if mathematics had not been useful, it would long ago have disappeared from our school curriculum as required study. So tool subject means that मैथ्स जो है वो एक बहुत ही कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है स्कूल एजुकेशन के अंदर और इसके बहुत से लिंक्स होते हैं दूसरे बहुत से सब्जेक्ट्स के साथ. ये एक अकेला सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता बल्कि इसके दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ बहुत से ये इसके लिंक्स होते हैं, इसके रिलेशनशिप्स होते हैं और अगर ये इतना इम्पोर्टेंट ना होता तो डेफिनेटली वो अब तक हमारे स्कूल करिकुलम से निकल चुका होता. ये एक जनरल एक ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी ये सोच होती है कि दे आर वेरी पुअर एट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो वो शायद ये समझते हैं कि इसको स्कूल के करिकुलम के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स की. बट वी शुड नो दैट मैथमेटिक्स इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज ऑल अदर सब्जेक्ट्स आर. सो ये हमारे करिकुलम में. नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज़ अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेसेस. So इसमें logic is everywhere in mathematics. Mario Perry stated mathematics is a hypothetico-deductive system. Hypothetic means एक hypothetical जो situation होती है उसमें और deductive system यानी deduce करना conclusions को deduce करना. This statement means that mathematics is a system of logical processes whereby conclusions are deduced from certain fundamental assumptions and definitions that have been hypothesized. This has been reinforced by Benjamin Peirce when he defined mathematics as the science which draws necessary conclusions. अगर आपको याद हो डेफिनेशंस वाला जो हमने हैंड आउट कवर किया था उसमें भी पायर्स ने इस चीज़ को ये कहा था कि साइंस इज़ अबाउट ड्राइंग नेसेसरी कंक्लूजन्स. और जब हम ड्रॉ करते हैं नेसेसरी कंक्लूजन्स तो बेसिकली वो बेस कर रहे होते हैं लॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर. द स्टूडेंट ड्रॉज द इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द प्रेमिसेस प्रोवाइडेड द प्रेमिसेस आर. The last point is about nature of mathematics as an intuitive method.
Intuition implies the act of grasping the meaning or significance or structure of a problem without explicit reliance on the analytic operators of one's craft. It is the intuitive mode that yields high. Intuition, when applied to the mathematics, involves the concretization of an idea not yet stated in the form of some sort of operations or example. A child forms an internalized set of structures for representing the world around him. These structures are governed by definite rules of their own. In the course of development, these structures change and the rules governing them also change in certain systematic ways. To anticipate what will happen next and what to do about it is to spin our internal models just a bit faster than the world goes. It is important to allow the student to express his intuition and check the verify its validity otherwise quickly. So intuition basically इसका जो simple meaning है that is knowing something before time. जब आप मैथ्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमने स्टूडेंट्स के अंदर एक इंट्यूशन डेवलप कर रही होती है कि जिसमें बच्चा जो है वो एक इंटरनलाइज्ड सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स उसने अपने बनाए होते हैं और उसकी एक रिप्रेजेंटेशन बनी हुई होती है. तो उसमें ये जो रूल्स उसको गवर्न कर रहे होते हैं उसकी बेस पर स्टूडेंट जो है उसके अंदर ये एबिलिटी डेवलप होती है. वो एक सिस्टमैटिक वे में सोचते हुए अपने प्रिंसिपल्स को गवर्न करते हुए वो इस चीज़ को एंटिसिपेट कर पाता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एंड व्हाट टू डू अबाउट इन द to spin our internal models. So these were the points of nature of mathematics. Thank you. Now we will discuss needs and significance of learning mathematics. This topic is related with the nature of mathematics. As previously I was talking about nature of different dimensions of the nature of mathematics, and now we will discuss need and significance of mathematics. Mathematics learning helps to apply mathematical concepts and theorems to new situations. Mathematics एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एप्लीकेशन न्यू सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एक यूनिट में एक एक्सरसाइज की बात करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के एक स्पेसिफिक फार्मूला के साथ जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता बल्कि एक ही एक्सरसाइज के अंदर एक ही तरह के 1 2 6 7 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए होते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज़. तो स्टूडेंट्स ने उन सब को सॉल्व करना होता है एंड यूजुअली व्हाट टीचर्स डू दे सॉल्व वन टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज ऑफ नेचर. लॉज ऑफ नेचर के बारे में ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है मैथ्स, बिकॉज अगर आप मैथ्स और उससे एसोसिएटेड फिज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप देखें तो वो लॉज ऑफ नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं. Third is mathematics helps in clear understanding of the culture and development of our civilization. आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. हमारी लास्ट जो लेक्चर था हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो उसमें हमने डिटेल से पढ़ा कि हाउ सिविलाइजेशंस वर डेवलप्ड इन द प्रीवियस years and how maths was understood in different cultures and in different eras. Next is mathematics learning helps to think alternative methods of solving problems. Solving problems जो है वो एक बहुत major skill है in the mathematics education, and once the students are trained to solve the problems, so then they can solve any type of problems in their daily life and as well as in mathematics education.
इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपने एक तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो उसको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड्स भी मैथ्स में अप्लाई होते हैं. बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स विच हु आर गुड एट मैथमेटिक्स, दे यूज़ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड डिफरेंट फार्मूलाज and they try to implement different formulas in different situations and to solve the problems. Next is mathematics provides a framework for solving problems. एक proper framework होता है mathematics के questions में in order to solve the problems, and what that framework could be equations हो सकती हैं, different formulas हो सकते हैं, different strategies हो सकती हैं एक question को solve करने के लिए. So we do have a lot of frameworks for solving the problems. The next is mathematics is a powerful tool in the hands of the learners because mathematics एक practical subject है. in daily life में इसकी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और इस तरह से जब एक students especially primary level तक जो students होते हैं when they are efficient at mathematics तो वो mathematics का यूज़ अपनी daily life में बहुत अच्छे से कर सकते हैं. Mathematics learning helps in a better understanding of the world around us. तो मैथ्स जो है वो हमें हमारे इर्द गिर्द की जो लाइफ होती है उसको समझने में बहुत हेल्प करता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स. सो बेसिकली वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि मैथ्स इनकलकेट करता है स्टूडेंट्स में व्हेन दे आर लर्निंग मैथमेटिक्स. व्हाट मैथमेटिक्स डू इज़ develops the power to generalize and classify. क्लासिफिकेशन मैथ्स में बहुत ज़बरदस्त होती है. यूनिट्स पहले तो ओवरऑल मैथ्स की क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट एरियाज़ हैं मैथमेटिक्स के. देन विद इन मैथमेटिक्स एरियाज़ आगे फर्दर डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, उनको फिर यूनिट्स को एक्सरसाइजेज में क्लासीफाई किया होता है. एंड सेम ये सिर्फ क्लासिफिकेशन जो है ये यूनिट्स और एक्सरसाइजेज की नहीं होती, बट दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो जैसे जैसे मैथ्स जो है उसके कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, उसकी क्लासिफिकेशन ब्रॉड होती जाती है और पावर ऑफ जनरलाइजेशन डेवलप होती है स्टूडेंट्स में वाइल लर्निंग मैथमेटिक्स, क्योंकि वो एक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसको जनरलाइज करते हैं इन ऑल ओवर द मैथ्स, क्योंकि इंटर रिलेटेड भी होते हैं कॉन्सेप्ट्स. हमने पहले भी पढ़ा कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज़ इंटर रिलेटेड विद मैनी अदर कॉन्सेप्ट्स. सो मैथ्स को एक बच्चा जब एक कॉन्सेप्ट को एक जगह पर लर्न करता है तो वो उसको बहुत सी और जगहों पर मैथ्स को सॉल्व करते हुए उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम एडिशन की एग्जांपल लेते हैं तो एडिशन को वंस स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन तो वो सिर्फ उसके अरिथमेटिक्स में यूज़ नहीं होता, बल्कि प्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो अलजबरा में, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, ईच एंड एवरीवेयर मैथ्स के हर एक ब्रांच के अंदर यूज़ होता है. सो जनरलाइजेशन कैपेसिटी बच्चे की बहुत इंक्रीज़ होती है और क्लासिफिकेशन कैपेसिटी बहुत इंक्रीज़ होती है. और कौन सी वैल्यू इनकलकेट करता है मैथ्स स्टूडेंट्स में? इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी. अब सेल्फ स्टडी जो है मैथ्स में, जब एक न्यू कॉन्सेप्ट बच्चे ने लर्न करना होता है तो वहाँ पर तो उसको किसी ट्यूटर या टीचर की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट, बट आफ्टर दैट उसकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा होती है मैथ्स के अंदर कि उसमें एक सेल्फ हैबिट बच्चे के अंदर डेवलप होती है सेल्फ स्टडी की. आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, बहुत इंटरेस्ट है उनका अगर मैथमेटिक्स में, तो दे आर वेरी क्विक एट मैथमेटिक्स, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है. वो सेल्फ स्टडी की हैबिट उनके अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि वो खुद से सॉल्व करने, प्रॉब्लम सॉल्विंग को वो इंजॉय कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है. The next value which is inculcated in the students by learning mathematics, it helps students to assume responsibility for his own work. जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट आंसर. अगर वो ठीक है या गलत है, बच्चे ने उसको जस्टिफाई करना है और उसको डिफेंड करना है, अपनी मेथडोलॉजी को डिफेंड करना है. सो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है बच्चों की. इट डेवलप्स कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन.
बच्चा जो है वो किसी भी न्यू प्रॉब्लम में जब उसको फेस कर, हम प्रॉब्लम कोई पोज करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम उसको जब पोज की जाती है, तो उसकी इमेजिनेशन, वो थ्रू इमेजिनेशन कंस्ट्रक्ट करता है उसका मीनिंग और उसके प्रोसेस को कंस्ट्रक्ट करता है और फाइनली उसके आंसर तक पहुंचता है. सो उसकी इमेजिनेशन पावर जो है वो इन लर्निंग इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होती है. मैथमेटिकल लर्निंग कल्टिवेट्स द पावर ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन. अगर एक पुअर अटेंशन के साथ बच्चा है, उसकी कंसंट्रेशन पुअर है, ही कैन नेवर बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स. तो मैथ्स में प्रॉपरली आपका इंटरेस्ट तभी हो सकता है जब आपकी अटेंशन हो और कंसंट्रेशन हो, और विच लीड्स टू गुड लर्निंग. तो यूजुअली जो है वो ये एक बहुत बेसिक फैक्टर है जो स्टूडेंट्स में लो अटेंशन और लो कंसंट्रेशन अगर स्टूडेंट्स की हो तो वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. मैथमेटिकल लर्निंग इनकलकेट्स हैबिट्स ऑफ नीटनेस एंड एक्यूरेसी. अगर आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक्स याद हों तो दे आर क्वाइट नीट एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में, लाइंस में उसका एक काम होता है, एक स्टेप्स में फॉलो करने की बच्चे को एक आदत होती है, एक एक्यूरेसी, क्योंकि एक एक्यूरेट आंसर आपने उसको ड्रॉ करना होता है, एक एक्यूरेट आपको एक आंसर चाहिए होता है मैथ्स के अंदर. सो एक हैबिट जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बच्चे के अंदर डेवलप करती हैं. एक तो नीटनेस की हैबिट है और दूसरी एक्यूरेसी की हैबिट है. दीज आर फ्यू एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स जो कि हमारे यहाँ स्कूल्स में डिफरेंट पढ़ाए जा रहे होते हैं. अलजबरा है, कैलकुलस एंड एनालिसिस है, ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी है, लॉजिक एंड नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेटरिक्स, यानी कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट टॉपिक्स के कॉम्बिनेशंस भी हैं. नाउ वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट मैथ्स इन आवर डेली लाइफ, द रोल ऑफ मैथ्स इन आवर डेली लाइफ. Now we will study in this in coming slides that how maths is performing its character in our daily life. Here you have to make a list of daily life uses of maths in your register or in your notebooks before going to the next slides. अगर आप यहाँ pause करके अपनी एक list prepare कर लें, to be very honest, being very honest, और आप तब आपको बाद में जो है वो उसको हम कंपेयर करेंगे. बहुत सी ऐसी, दिस कैन बी अ लेंथी लिस्ट, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं मैथ्स के डेली लाइफ के अंदर, लेकिन उनमें से कुछ जो हैं वो हम अगली स्लाइड्स में कवर करेंगे. जी, कैन यू इमेजिन, कभी आपने इस तरह का खाना खाया है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई एक इंग्रेडिएंट जो है उसका बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो, लाइक बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा सॉल्टी. तो इस तरह का खाना जो है उसको समटाइम्स खाना हमें बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, नहीं खाया जाता ऐसा खाना. और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इम्बैलेंस जो है इंग्रेडिएंट्स का वो भी एक पुअर टेस्ट डेवलप करता है खाने में. तो व्हाट इज़ ऑल दैट? दैट इज़ मैथमेटिक्स. बिकॉज उसके लिए जब आप, अगर इफ़ यू आर फीमेल्स यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस, एंड इवन इफ़ यू आर मेल्स यू कैन देन स्टिल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज यू आर टेकिंग फूड एट योर होम. आप पके हुए खाने जब अपने घर में खाते हैं तो उसका टेस्ट आपको बताता है कि क्या मैथमेटिकल प्रोपोर्शंस में ऊंच नीच हो गई है इस खाने को बनाते हुए. सो अगर हमें, जब हम खाना बना रहे होते हैं तो हमें प्रॉपर एक इंग्रेडिएंट्स, आपने कुकिंग शोज़ को देखा होगा, दे आर स्पेसिफिकली मेंशनिंग द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. आपने जी 1 टीस्पून लेनी है या टेबल स्पून लेनी है, तो समटाइम्स इसका जो कंफ्यूजन है वो भी टेस्ट में एक बड़ा चेंज उसमें डेवलप कर देती है. समटाइम्स हम टेबल स्पून्स को टीस्पून समझ रहे होते हैं और टीस्पून्स को टेबल स्पून समझ रहे होते हैं, तो उससे भी गड़बड़ हो सकती है आपके पकाए हुए खाने में. और इसी तरह से सिर्फ ये मिर्च मिसालों तक इसकी बात नहीं होती, आपको ये भी देखना होता है कि कितने क्वांटिटी है आपकी फूड की, और अकॉर्डिंग टू दैट क्वांटिटी आपको क्या प्रोपोर्शन चूज़ करना है उसके अंदर जो बाकी आपने चीज़ें डालनी है. तो सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट नहीं है, इसमें बहुत से प्रोपोर्शंस और बहुत से मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स कुकिंग में अप्लाई हो रहे होते हैं. नेक्स्ट जो डेली लाइफ यूज़ है मैथमेटिक्स का, दैट इज़ इन डाइट. आपको अपनी डाइट का ख्याल हम सब रखते हैं बिकॉज वी वांट टू स्टे हेल्दी.
तो अगर आप ओवरवेट हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं फॉर द फूड। तो समटाइम्स हम आप हर एक चीज़ के अंदर कैलोरीज को काउंट कर रहे होते हैं, हाउ मच कैलोरीज आई एम टेकिंग। और नॉट ओनली कि सिर्फ आप डाइट पर होते हैं, समटाइम्स आपकी हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं वेयर यू हैव टू टेक वेरी बैलेंस्ड डाइट, लाइक डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ देम। अगर आप डायबिटिक हैं या आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है तो आपको फूड की क्वांटिटी को बड़ा केयरफुली मॉनिटर करना होता है, और उसके अंदर जो कैलोरीज़ हैं, शुगर की कैलोरीज़ कितनी जा रही हैं। इसी तरह से जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक टू कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो उसके लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। तो और इस तरह की बहुत सी हेल्थ कंडीशंस हैं तो जिसमें हमें कैलोरीज़ और इवन फूड क्वांटिटी जो है उसको बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है। सो पीपल हु आर ओवरवेट नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर कैलोरी इनटेक, स्पेशली इफ दे आर ऑन स्पेशल वेट लॉस। Diet knowledge of math is needed to calculate the total amount of calories consumed in a day. Another use of mathematics in daily life is in banking. आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी कहीं ना कहीं बैंक्स में जाने के लिए जाते हुए, बल्कि अक्सर हम लोग जाते हैं फॉर द फी वोचर, पेमेंट ऑफ फी वोचर्स, अपने डिफरेंट चलान फॉर्म्स को पे करने के लिए, इवन अपने समटाइम्स जो पेनल्टी आपको पड़ती है फाइन चलान फॉर्म्स को भी सबमिट करवाने के लिए। दिस इज़ जस्ट अ जोक। So banking is probably the one place where math is used more than anywhere else. No one without basic knowledge about math can't do anything in a bank. मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ बैंकर्स के लिए उसको जानना ज़रूरी नहीं है, बैंकर्स ने तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस मैथ पढ़ा होता है, बट स्टिल अगर आप एक लेमैन हैं, uneducated person भी, even if he need to visit बैंक उसको भी एक बेसिक नॉलेज जो है मैथ्स का वो लाजमी उसको पता होना चाहिए, दैट व्हाट टू डू इन बैंक अबाउट द मनी, अबाउट द ऑल द कैलकुलेशंस बीइंग डन एट बैंक। तो बेसिक नॉलेज मैथ्स का बैंक के अंदर एप्लीकेशन बेसिक नॉलेज की बहुत ज़्यादा होती है। Another field where mathematics has its role is arts, और ये लीस्ट थॉट एक ऐसा एरिया है जिसमें ज़्यादातर हम ये समझते हैं कि मे बी आर्ट्स में कहीं देयर इज़ नो वेयर मैथ, बट अपोजिटली इसके अगर आप देखें कॉन्ट्रेरी, मैथ इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय आर्टिस्ट्स वाइल मेकिंग पेंटिंग्स। डेफिनेटली जब हम पेंट कर रहे होते हैं लोग पेंटर्स, तो उसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं, इवन दे इफ़ दे हैव टू मेक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, उसके लिए भी उनको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में उनको मिक्स करना होता है। एक किसी एक कलर को कितनी क्वांटिटी में कितने एरिया के ऊपर उसको स्प्रेड करना है। तो सो पेंटिंग्स बनाते हुए मैथ इज़ एवरीवेयर। डिज़ाइनिंग कोलाज, कैसे किस तरह आप अपने मोबाइल में कोलाज बनाते होंगे डिफरेंट, आप अपने पिक्चर्स को लेकर बच्चे जो हैं वो उसका कोलाज प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी एक प्रॉपर मेजरमेंट है, एक प्रॉपर एप्लीकेशन है मैथ्स की। एज वेल एज ड्यूरिंग डांस परफॉर्मेंसेस, आपने देखा होगा कि व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग देयर डांस परफॉर्मेंसेस, तो वो बड़ा लाउडली उसको बोल रहे होते हैं 1 2 3 4, सो एंड दे लर्न दैट स्टेप्स बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, और उसकी एक प्रॉपर केमिस्ट्री डेवलप की जाती है डांस के लिए। In all these cases, the size of canvas, the size of stage, etc. play a very important role in deciding all these aspects is literally impossible without the knowledge of math. अगर आप डांस परफॉर्मेंस को देखें तो एक डांसर जो है व्हेन ही और शी इज़ गोइंग टू परफॉर्म ऑन अ बिग स्टेज, तो उसके स्टेप्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, उनकी स्टेप्स की लेंथ और विड्थ जो है वो उसको उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। एंड वन दे आर सपोज टू परफॉर्म ऑन अ स्मॉलर कंपैरेटिवली स्मॉलर स्टेज, एक छोटी जगह पर उनको परफॉर्म करना हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करते हैं अपने स्टेप्स के साइजेस को। सो मैथ्स जो है वो आर्ट्स में उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एक और बहुत कॉमन यूज़ का एरिया वेयर मैथ्स इज़ अप्लाइड इज़ शॉपिंग। व्हेन यू आर ऑन शॉपिंग, तो आपको जगह जगह पर ऐसी लिस्ट थमा दी जाती हैं, आपको आपका बिल जो है वो जब पे करना होता है तो उसके बिल के ऊपर आपकी पूरी लिस्ट ग्रॉसरी की बनी होती है, एंड यू हैव टू मैच द आइटम्स एंड देयर प्राइस लिस्ट।
तो ये सारा जो है वो, और व्हेन यू आर पेइंग थ्रू योर क्रेडिट कार्ड्स और योर डेबिट कार्ड्स, सो मैथ्स को आप ड्यूरिंग शॉपिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। इवन व्हेन यू आर चूजिंग योर आइटम्स, जब आप अपनी पसंद के फॉर एग्जांपल ड्रेसेस पसंद कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आप ड्रेस अगर जो आपको अच्छा लग रहा होता है उसका प्राइस टैग पकड़कर उसको देखते हैं, और सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि उसको मैच करते हैं अपनी उस अमाउंट के साथ जो आपकी पॉकेट में है, यानी आपकी पॉकेट कितनी इजाज़त दे रही है कितनी शॉपिंग करने की, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने ड्रेसेस को चूज़ कर रहे होते हैं। तो शॉपिंग करते हुए मैथ्स की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। गार्डनिंग नेक्स्ट जो है, उसमें फॉर प्लानिंग टू सो सीड्स और काउंट द नंबर ऑफ प्लांट्स, everything requires numbers, all tasks carried out inside a garden require proper measurements। ये सिर्फ आपके होम गार्डन में ही आपको इतना ज़्यादा मैथ नज़र आ सकता है कि अगर आप एक तरह के प्लांट्स लगा रहे हैं या डिफरेंट प्लांट्स लगा रहे हैं एक छोटी सी प्लेस के अंदर, तो उसके लिए प्रॉपर डिस्टेंस आपने कितना रखना है। और इसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप देखें तो आजकल अगर आप बाहर विज़िट करें, कोई भी जो क्रॉप है उसको आप देखेंगे तो उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको नज़र आएगा कि किस तरह से लाइक सब्जियां अगर लगी हुई हैं तो एक प्रॉपर रोज़ उनकी बनी होती हैं, और इवन विद इन अ रो जो दो डिफरेंट सीड्स हैं उनके दरमियान में एक प्रॉपर डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ग्रो बेटर। सो दीज वर सम बेसिक एरियाज़ जो कि बिल्कुल एक बेसिक लेवल का मैथ जो है वो रिक्वायर करते हैं ये एरियाज़। मैंने सिर्फ इन एरियाज़ को यहाँ पर इस वजह से डिस्कस किया है क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं बेसिक जिसमें स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स जो हैं उनके लिए मैथ्स की एप्लीकेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितनी एक आम इंसान के लिए होती है। बिकॉज कोई भी स्पेशल नीड के साथ स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्पेशल नीड के साथ स्टूडेंट्स हैं, तो दे यूज़ टू गोइंग फॉर शॉपिंग, और कुछ हम उनको ऐसी स्किल्स इवन मेंटली रिटार्डेड की अगर हम बात करते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड या हेयरिंग इम्पेयर्ड, तो उनको बाहर किसी न किसी तरह से शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है, वहाँ पर उनको मैथ की ज़रूरत होती है। उनकी डेली लाइफ स्किल्स जब हम उनको सिखा रहे होते हैं तो उसमें हम उनको कुकिंग और इस तरह के और छोटे छोटे जो आर्ट्स से रिलेटेड उनकी एप्लीकेशंस उनको यूज़ कर सकते हैं मैथ्स को। आर्ट्स के अंदर गार्डनिंग भी एक ऐसा एरिया है जो कि इन बच्चों को सिखाया जा सकता है, जो उनके लिए यूज़फुल हो सकता है उनकी वोकेशनल लाइफ और उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ये वो सारे एरियाज़ हैं जिसके अंदर मैथ्स स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स जो हैं उनके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो डेली लाइफ मैथ स्किल्स हमारा चूँकि फोकस होता है स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हुए कि हम उनको उस मैथ तक स्पेसिफिक रखें जो कि उनकी डेली लाइफ स्किल्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो ये वो सारे एरियाज़ हैं जिनमें स्पेशल बच्चों के लिए मैथ्स की एप्लीकेशन की जा सकती है। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको नेचर मैथमेटिक्स की समझने के लिए और इसका डेली लाइफ यूज़ समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।